जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स। इसकी समरी और ट्रांसलेशन हो गई थी। आज इसकी एक्सरसाइज हम देखते हैं, तो शुरू करते हैं। तो इसके पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन, पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग, ये सारे क्वेश्चन करते हैं हम। प्री रीडिंग। What are adventure sports? Adventure sports are unusual, risky, and exciting activities that differ from the traditional sports. They include activities such as mountaineering, rock climbing, trekking, skiing, and scuba diving. These sports often take place in challenging environments and aim to foster self confidence, personal growth, and connection with the nature. ठीक है कि ये रिवायती खेलों से मुख्तलिफ होते हैं। इससे इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और फिजिकल उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। How do sports help in our well-being? Sports contribute to our well-being by improving physical and mental health, enhancing self-confidence, and promoting the social relations. आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, खुद पे इतबार भरोसा बहाल होता है और लोगों के साथ आपके रिलेशन बनते हैं। दे encourage teamwork, cooperation, and patience while also providing the opportunities to overcome challenges and fears. फिर आप खौफ पे भी काबू पाते हैं। Engaging in the sport can lead to a more active lifestyle, reduce stress, and the greater sense of fulfillment and the happiness. जो लोग इन कामों में पढ़ते हैं फिर उनकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता है और थोड़ा एक्टिव नजर आते हैं। उसके बाद है वाइल रीडिंग क्वेश्चन। व्हाट पार्ट डज एडवेंचर स्पोर्ट्स प्ले इन हेल्पिंग पीपल step beyond their comfort zone and confidence? Adventure sports encourage individuals to confront and overcome their fears, pushing them out of their comfort zone. By facing these challenges, participants building participant build self-confidence and mental strength, allowing them to discover their inner potential and embrace various aspects of the life with the न्यू फाउंड वाइटैलिटी। ठीक है, इससे क्या होता है, आप में बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं आपकी पर्सनैलिटी में जो कि आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाल के लाती हैं। What steps have Pakistani adventure clubs made to increase the accessibility to adventure sports, and how have they changed to suit a wider audience? Pakistani adventure clubs have formed initiatives across the various cities to make adventure sports more accessible. They have expanded the membership options beyond the select few, organized high-end activities like trek to the K2 base camp, and collaborated with the international travel groups. This has allowed a broader audience, including both locals and international travelers, to engage in exciting outdoor activities in the Pakistan. तो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे आजकल ये सारी चीज़ें वायरल जा रही हैं कि आप आएँ, मोस्ट वेलकम पाकिस्तान में। पोस्ट रीडिंग देखें। व्हाट आर द पॉसिबल इकोलॉजिकल consequences ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज टू कंट्रोल एंड रिड्यूस देम। देखें इकोलॉजिकल किन से, माहौल से रिलेटेड कौन कौन से मामला हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है। Adventure sports can lead to the environmental damage such as depletion of the natural resources, waste production, and the greenhouse gas emissions from the transportation. To control and reduce these impacts, participants should choose the environmentally conscious companies, use sustainable equipments, and follow practices that minimize waste. Understanding the ecological effect of these sports can help individuals to make better choice. ठीक है, तो इसी तरह ही होता है, जब आप माहौल को गंदा करने लग जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है माहौल भी आपके साथ अच्छा नहीं करेगा। तो ऐसी कंपनियों का इंतखाब करना चाहिए, ऐसी गाड़ियों का इंतखाब करना चाहिए तो धुआं कम छोड़ती हूँ। ठीक है, और फिर वहाँ जाएं तो प्लास्टिक फेंकने से ख्याल करें। तो ये सारी चीज़ें इंसान के हाथ में हैं। In what ways might adventure sports help players cultivate a more compassionate attitude toward the wildlife and care एथिक फॉर द एनवायरनमेंट? अब देखें किस कैसे उनको पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ की तरफ उनकी कैसे एहतियात बढ़ती है।
Adventure sports can foster a care ethic for the environment by allowing participants to connect with the nature and experience its beauty firsthand. तो जब आप जाते हैं, अगर मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि नॉर्दर्न एरियाज बहुत खूबसूरत हैं, तो आपको भी पता नहीं है जब तक आप जाएंगे नहीं। फर्स्ट हैंड का क्या मतलब है? डायरेक्टली किसी चीज को देखना। This connection can lead to the greater compassion for the wildlife and understanding of the importance of preserving natural habits, and as participants develop a sense of responsibility toward the environment. तो इससे फिर आप जब जाते हैं तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको इश्यूज पता चलते हैं कि माहौल को हमें कितना साफ रखना चाहिए। हाउ कैन वी डेवलप adventure sports in Pakistan? Developing adventure sports in Pakistan can involve forming more adventure clubs to facilitate exploration, increasing awareness of the outdoor activities, and organizing high-end adventure activities like trekking to the K2 base camp. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। Collaborating with the international travel groups and promoting the country's beautiful landscapes can attract both local and international adventurers, making holidays more adventurous and memorable. आप देखें गिलगित बल्तिस्तान कभी भी आप टूर पे जाते हैं तो लोग आपके स्टेटस लगा देते हैं, वहीं से लाइव आ जाते हैं। जब आप उस खूबसूरती को देखते हैं तो फिर आपके अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा होती है कि इन इलाकों को आप भी विजिट करते हैं। तो आगे देखें, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडवेंचर स्पोर्ट्स? Adventure sports are unusual, risky, and exciting activities like mountaineering, rock climbing, and scuba diving aimed at the fostering self-confidence and personal growth. ये वो चीज़ें हैं जिससे आप में पर्सनल ग्रोथ होती है। How do you think the adventure sports promote confidence in the people? Adventure sports से लोगों में confidence कैसे आता है? They push individuals out of their comfort zone, helping them confront fears and build self-esteem through overcoming challenges. कि ये वो चीज़ें हैं लोगों को जो कंफर्ट जोन से निकालती हैं और उन्हें बताती हैं कि भाई अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया है, तो मुफ्त में नहीं दिया, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बाहर निकलें। इवन आप देखें कंफर्ट जोन क्या है, अगर आपको एक हफ्ता ये कह दिया जाए ना कि आपने उठना नहीं है, लेटे रहना है, बिलीव मी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी कमर टूटी हुई हो। तो कंफर्ट जोन हमेशा इसी तरह ही तोड़ देता है आपको। Do you agree that the adventure sports can be effective stress relievers? State your answer with real life. Yes, they can relieve stress by providing the intense mental challenges that focus the mind on the present, such as the adrenaline rush from the bungee jumping. आप अपनी लाइफ के बारे में कोई भी इवेंट इस तरह लिख सकते हैं। Describe some benefits of the playing adventure sports. Benefits include increased self-confidence, improved physical and mental health, enhanced social skills and deeper connection with the nature. तो आपका नेचर के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बनता है। Write briefly about the adventure sports played in Pakistan. Adventure sports in Pakistan, especially in the northern regions, include trekking and mountaineering, with clubs facilitating exploration and catering to the both locals and इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। कैटरिंग का क्या मतलब होता है कि उनको रिहाइश देना, सहूलत देना, उनके खाने पीने का निज़ाम करना। आर एडवेंचर स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली? शेयर योर थॉट्स। ठीक है, नो, दे कैन हार्म द एनवायरनमेंट थ्रू द रिसोर्स डिप्लीशन एंड वेस्ट, ऑल्दो दे ऑफर द अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट विद द नेचर। ऐसा नहीं है क्योंकि खुदा ने ये जो दुनिया बनाई है, कोई भी चीज़ इसमें न्यूट्रल नहीं है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है उसके साथ। इसी तरह हर चीज़ पेयर्स में है, और तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, तो उस हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। हाउ कैन वी रिमेन इन्वायरमेंटली कॉन्शियस वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द एडवेंचर स्पोर्ट? सजेस्ट समवेयर। चूज इको फ्रेंडली कंपनीज, यूज सस्टेनेबल इक्विपमेंट, फॉलो लीव नो ट्रेस। ठीक है, फॉलो लीव नो ट्रेस का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी गंद वगैरह ना छोड़ें जिससे पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे कोई आया है। ठीक है, मिनिमाइज वेस्ट एंड एजुकेट वन सेल्फ अबाउट द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। और फिर आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमारा माहौल कितना मामलात से गुजर रहा है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज टू शो एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। ठीक है, ऐसा काम जो माजी में फिनिश हो चुका हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मुझे ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो ग्रीन है, यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल में ग्रीन किया हुआ है, यहाँ पे जो येलो है यहाँ पे भी येलो है।
अब देखें इसमें एक चीज का एडिशन हुआ है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम पॉइंट्स इन द पास्ट एंड वांट टू रेफरेंस एन इवेंट दैट हैपेंड इवन अर्लियर, कि ऐसा इवेंट जो एक दफा हो चुका हो लेकिन आप उसके साथ ऐसा इवेंट ऐड करें जो उससे भी पहले हो चुका हो, तो उसके लिए यूज होता है। Using the past perfect allows you to convey the sequence of the events. It also clearer and the more specific. ठीक है, अब देखें, आई हैड फॉलन एज लीव, ये पास्ट परफेक्ट है, बिफोर 8 o'clock, ये एक और इंसिडेंट है। तो इसी तरह आपकी एग्जांपल लिखी हुई है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि आप फिफ्थ क्लास से लेके टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आपने हैड लगाना है और फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। तो शी हैड गॉन, इधर क्या है, शी हैड, माई फादर हैड लेफ्ट, माई सिस्टर हैड नॉट सीन, द गर्ल हैड फिनिश्ड, अली हैड लिव्ड। तो आगे देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही ज्यादा वही चीज बताई गई है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए एक टर्म प्रोग्रेसिव भी यूज होती है। अगर आप किसी को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप ये कह सकते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव भी, जिस तरह सिंपल और इंडेफिनेट सेम होते हैं, इसी तरह प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस भी सेम होते हैं। ये एग्जांपल है। आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ये देखें, यू हैड ईटन योर मील व्हेन शी अराइव्ड। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के साथ करनी है तो हैड ईटन आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया हुआ है, तो ये जिनको मैंने रेड किया हुआ है ये मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, या तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में कोई गलती है। तो अमूमन इसमें गलती ही है। देखें, हैड ईटन आया है योर मील व्हेन शी अराइव्ड, तो ये इन्हें कंडीशनल दे दिए, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस लग ही नहीं सकता, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लग सकता है। अब देखें, शी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स। देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास इंडिकेशन ऑफ टाइम होनी चाहिए। इंडिकेशन ऑफ टाइम इस सेंटेंस में है, सेकंड में। इसी तरह थर्ड में देखें, हैड बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस द लास्ट मंथ, इसमें भी इंडिकेशन ऑफ टाइम है। अब देखें, सबा हैड बीन रीडिंग फॉर फेवरेट बुक सिंस इवनिंग, ये भी पास्ट परफेक्ट है। अब देखें, ये लास्ट में भी वही गलती है, आई हैड कुक द मील फॉर द गेस्ट व्हेन दे कॉल्ड। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि आई हैड बीन कुकिंग। तो इस तरह कॉमन सेंस मुझे अपील नहीं कर रहा, आप अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद देखें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? तो आपको जब कोई बंदा बराह रास्त कुछ कहता है तो वो डायरेक्ट होती है, लेकिन आप जब वही बात आगे बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, तो देखें, रिपोर्ट द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड एज स्पोकन बाय हिम। अब मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ये मेरी डायरेक्ट स्पीच है, अगर आप इसी चीज को किसी और को बताएंगे तो आप उसका मफहूम बताएंगे, तो वो होगी इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे देखें, डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल क्या है, माया सेड आई एम बिजी नाउ। इनडायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, ये आपके अपने अल्फाज में होता है। अगर डायरेक्ट वर्ड में रह जाए तो फिर तो उसको चेंज करने की जरूरत ही ना हो। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, माया सेड दैट शी वाज बिजी। तो सिंपल, आप देखें इसमें तीन चीजों के चेंज होते हैं। ये कभी मैं टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको, बजाय आप इसको इस तरह समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, ये लेंथी हो जाता है। आप देखें, सब्जेक्ट तो आप चेंज कर देते हैं, आप ऑब्जेक्ट वो जिस तरह भी करते हैं। मैं आपको वर्ब का बता देता हूँ, जहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो उसको सेकंड कर देना है, जहाँ पे सेकंड हो उसको थर्ड कर देना है, बाकी वैसे की वैसे रहेंगे। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन में जहां तक वर्ब का ताल्लुक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आई हो तो उसको सेकंड कर देना है, सेकंड आई हो तो थर्ड कर देना है, बाकियों को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये जनरल उसका फार्मूला है। आई वर्क इन एन आईटी कंपनी, शी सेड दैट शी वर्क इन एन आईटी कंपनी। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ही टेल्स अस, ही he told us that he understood the problem। ये देखें, ये गलत है, यहाँ पे ये जो आया हुआ है यहाँ पे ये वाला बनता है इसका। ही टेल्स अस, जब प्रेजेंट आया हुआ हो अंदर भी बाहर ही, तो उसको आपने उसका टेंस चेंज नहीं करना। तो ये इसको दोबारा आप ठीक कर लें, इसका ये येलो वाला है।
आई लिव इन पेरिस, शी सेज दैट शी लिव्स इन पेरिस। ठीक है। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड। They tell me that they visit their grandparents every weekend. I play the piano, she says that she plays the piano. Choose the correct narration, direct and direct speech, past tense. We went to the beach yesterday. They said that they had gone to the beach previous day. Yesterday को previous day से आपने change कर देना है. I visited my aunt last week. He told us. ठीक है. He told us that he had visited his aunt last week. She ate sushi for the dinner, he said. देखें यहाँ पे है she ate sushi, तो he said that she had eaten sushi for the dinner. We saw a movie last night, they told me that they had seen a movie the previous night. I read that book yesterday, she said that she had read that book previous day. Yesterday नहीं लिखेंगे आप, इस पे previous day कर देंगे. Choose the correct narration, direct and indirect speech. ठीक है. I have finished my homework, he said that he had finished his homework. She has cooked dinner, he told us that she had cooked dinner. इसी तरह they have already left, she said that they had already left. He has won the race, they told us that he had won the race. She has seen that movie, he said that she had seen that movie. Choose the narration, direct and direct speech, future tense. तो ये future को देख लें. We will call you tomorrow, she she promises that they would call us following day. तो tomorrow को आपने इधर following day लिखना होता है. I will finish this by Friday, he assures us that he would finish it by Friday. They will arrive at noon, she predicts that they would arrive at noon. I will visit my parents next weekend, he says that he would visit इधर would भी आप लिख सकते हैं, would visit parents in the next weekend. We will help you with the project, they promise that they would help us with the project. तो ये दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, इनमें कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया. Choose the correct narration, direct and direct speech. Okay, you should exercise regularly, she advises that I should exercise regularly. उसके बाद है when does the meeting start, he asked when the meeting starts. Change the narration, direct and direct. देखें, please finish your homework, his teacher tells him to finish his homework. इसमें आप अगर मेरे इस पे चैनल पे चले जाएंगे ग्रामर पोर्शन में, तो उसमें आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के सारे फार्मूले और सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने की हुई हैं डिफाइन. तो उसके बाद देखें चेंज द नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, शी आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हर विद दैट. ठीक है. अब देखें शी आस्क्ड इफ आई कैन हेल्प हर. अब यहाँ पे इसने इस तरह का सेंटेंस ही कोई नहीं दिया हुआ. ठीक है. इस तरह का सेंटेंस ही कोई नहीं दिया हुआ आगे, और ये मेरी समझ से बाहर है. अब देखें यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस आए हुए हैं. ये जितने भी सेंटेंस हैं ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. मेरा नहीं ख्याल कि इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. यही 5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं. द गेट वॉज क्लोज बाई 10 o'clock, द पुलिस क्लोज द गेट बाई 10 o'clock. तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है, वीडियो लेंथी हो जाएगी. चले मैं पढ़ लेता हूँ. कमेंट आए हुए थे कि सर आप प्लीज़ पढ़ लिया करें. द नावल वॉज रिटन बाई माई फेवरेट आथर. ठीक है. माई फेवरेट आथर रोड द नावल. The thief was caught by the police. The police caught the thief. She was attacked by a dog. A dog attacked her. The money was stolen by the servant. The servant stole the money. उसके बाद देखें read the given passage and answer the question given below. ये स्लाइड पे लिखा हुआ है मैंने. सारा टाइनी, ये सारी यही चीज़ लिखी हुई है ना. आप देखें determine which nouns are present in the passage. तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर ये दिए हुए हैं. इसमें नाउन्स कौन कौन से हैं? सारा, बर्ड, पेवमेंट, स्कूल. वर्ब्स इन द सेकंड एंड थर्ड सेंटेंसेस.
क्या है, सेकंड सेंटेंस में कैरेट है, पिकिंग है, थर्ड सेंटेंस में क्लीन, स्टार्टेड, रिसीविंग, टोक ऑफ है। Tenses used in the passage, the passage mostly uses the past tense. Example, Sarah saw a tiny herd bird. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, past है। Rewording the opening phrase in the past perfect tense, Sarah had seen a tiny herd bird on the pavement as she was making her way home from school. One affirmative sentence in the passage, she learned the value of kindness and compassion from the encounter. Affirmative किसको कहते हैं? सिंपल सेंटेंस को यूं समझ लें, आप कहते हैं किसी के बारे में स्टेटमेंट, किसी के बारे में कुछ बता देना। कंप्लेक्स सेंटेंस देखें, द बर्ड्स स्टार्टेड टू हील आफ्टर रिसीविंग। कंप्लेक्स सेंटेंस में क्या, कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आफ्टर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। Passive form of her mother helped her clean the bird's wound. She was helped by her mother to clean the bird's wound. Instance of the indirect speech in the direct. There is no indirect speech. Terms denoting considerate and caring. Kindness and compassion are the terms that denote being considerate and caring. Reason for using noticed instead of saw. The author may have chosen noticed to imply the deeper level of awareness and attention to the bird's condition, suggesting that the Sarah was not just seeing it. ठीक है, तो इस अल्फाज का जो इस्तेमाल होता है ये बड़ा केयरफुल होता है। राइटर जो होता है वो ऐसे ही उसका इंतखाब नहीं करता उस वर्ड का। रीवर्किंग द फाइनल सेंटेंस फॉर अ मोर फॉर्मल टोन। फ्रॉम दिस एनकाउंटर सारा गेन्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द काइंडनेस एंड द कंपैशन। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन, राइट अ रिव्यू ऑफ एनी स्टोरी दैट यू हैव रेड रिसेंटली विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन। तो ये सारी जो गाइडलाइंस दी गई हैं इसके मुताबिक मैंने अल्केमिस्ट के लिख दिए, जो आपका चैप्टर है, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता पांचवा या छठा है, बहरहाल आपका जो वो है उसी के बारे में मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसको आपने पढ़ा हुआ होगा तो ये आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी सेटिंग है, ये उसकी समरी है, तो यहाँ पे आप रोक के इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखें, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ योर फेवरेट फ्रॉम एनी स्टोरी। तो ये आप पे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी कैरेक्टर आपको पसंद हो आप उसके बारे में जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म होती है। होपफुली किसी हद तक मैंने आपके लिए चीज़ें आसान की होंगी। थैंक यू सो मच।